हेलो। तो समस्त को पुणी थे स्वागत। तो आज आम डिस्कस करवा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विषय आउट डिटेल। पूर्व क्लास आम अलरेडी देखी बायोलोजी हिस्ट्री डेफिनेशन टाक्सोनॉमी वर्गीकरण केमती है कौन कहार जनक कहुए। तो आज 5 किंगडम विषय आउट डिटेल देखा। तो ये आप देखिए तो गोटे गछ अच्छी एक गछ को भी एमती डिजाइन कराई प्रत्येक देखिए डाल अच्छी 5टी डाल 5टी डाल 5टी किंगडम को बुझाऊँ प्रत्येक डाଳରେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ କରାହେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖ ମନରେ ରହିଗଲା ଇଏ ଫଞ୍ଜାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଠି ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ଆନିମାଲ୍, ପୁଣି ଇଏ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ସବୁର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣ ରିଭାଇଜ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖିନେବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିନେବା, ପରେ ୟାକୁ ରିଭିଜନ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛଟା କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ମିଲିୟନରୁ ବି ଅଧିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। 1.5 ମିଲିୟନ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ 15 ଲକ୍ଷ ମୋତେ କୁହାଯାଏ। ତ ଏତିକି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ଏତେ ସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଟାକ୍ସୋନମିଟା ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜନ କରିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସମାନତା ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ସେସବୁକୁ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ପଢ଼ିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତାକୁ ହିଁ ଟାକ୍ସୋନମି ବା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକି କ'ଣ 5 କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗୀକରଣଟା ଆସିଲା ସେଇଠୁ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ କରାହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ମନେରା କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ସେଟାକୁ ମାନେ ପ୍ରୋକାରିଓଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବା ତା ସେଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ସେଠି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଲସ୍ ସେଇଟା ମାନେ ପ୍ରପରଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ତା'ର ଯେଉଁ ଆବରଣ ଥାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସେଇଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥାଏ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 4ଟି ହେଇଗଲେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ଫଞ୍ଜାଇ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମାଲ୍, ଏମାନଙ୍କର ସେଲ୍ ୟୁକାରିଓଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ସେଲ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କାଲି ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି ମନେରା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଭିତରେ ଇଏ ବି ୟୁନିସେଲୁଲାର, ଯେଉଁଟା ମନେରା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ବି ୟୁନିସେଲୁଲାର। ଫାଷ୍ଟ ଫରକ ଏତିକି ଯେଉଁଟା ମନେରା ହେଉଛି ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ସେ ହେଉଛି ୟୁକାରିଓଟ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ମନେରା କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍। ଯଦି ମନେରା କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଦେଖିବେ ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆର୍କିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତ ଆର୍କିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କହିପାରିବା ପୃଥିବୀରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ବା କୋଷ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଲା ସେ ହେଉଛି ଆର୍କିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ମନେରା କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ଆର୍କିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତାକୁ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କହିବାର ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା, ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ଏତେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଆର୍କିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଆଉ ସେମିତି ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଉଛି ତାକୁ ଟ୍ରୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆର୍କିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ସିଏ କ'ଣ ଯେମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା ସମୟକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିନେଲା ନିଜ ଭିତରେ ମାନେ ପରିବେଶରେ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ଟ୍ରୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏକ କମନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି କମନ୍ ଫର୍ମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟରେ ଥିବେ ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ଏଠି ଜାଣନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଯେଉଁ ମନେରାକୁ ମପାଯାଏ ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ମପାଯାଏ। ତ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ଆପଣ ଏଠି ମନେକର ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 10⁻⁻6 ମାନେ ୟାର 10⁻⁻6 ମିଟର ମାନେ ଏଇଟା ଅଛି 1/6 ମାନେ କହିବା 1/6 10 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ 1 ମିଟର ଗୋଟେ ମିଟରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଭାଗ କଲା ପରେ 1 ଭାଗକୁ ଯେଉଁଟା ବୁଝାଇ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋମିଟରକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଏତିକି ଛୋଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ମନେରା ଶ୍ରେଣୀର ଯେତେ ସବୁ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଗୋଟେ କୋଷରେ ତିଆରି। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଅଟୋଟ୍ରପିକ୍ କହିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଥାଏ ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଟୋଟ୍ରପ୍ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ସେଲ୍ଫ ନରିଚମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ଆର୍କିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସାଧାରଣତଃ ଏ 3ଟିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଆର୍କିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗଲେ ମିଥାନୋଜେନ୍, ଗୋଟେ ହେଲେ ଥର୍ମୋ ଏସିଡୋଫାଇଲ୍ ଆଉ ହାଲୋଫାଇଲ୍। ଯେଉଁଟା ମିଥାନୋଜେନ୍ ତାକୁ ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି ମିଥେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଲାଗିଛି। ମାନେ ଏ ମିଥେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲାବେଳେ
या व्यवहार करा जाए आउ एटा मार्सी एरिया माने जो सन्तसन्तिया जगार एगुड़ा थांती तापर आसगला थर्मो एसिडोफाइल ये भी देखिए ना ही थर्मो मान हूँ गरम को बुझाए एसिड माने अम्लीय परिवेश को बुझाए तो गरम जगह हो किंबा अम्लीय जगह हो से सब जगार ये बचिक रही पारती कौटा थर्मो एसिडोफाइल माने एक्सट्रीम हिट होता कि एसिड हो से सब एरिया बचिक रही पारती आउ गोटे हालोफाइल ये हालो मान हूँ सल्ट को बुझाए लुण तो तेणु मैंने लुणी पानी रही पारे तो जी जो भाई ता भर क्वालिटी से हिसाब से नाम भी पड़ी हालोफाइल माने लुणी पानी भी रही पाए जोटा कह समुद्र पानी जोटा थर्मो एसिडोफाइल थर्मो माने गरम एसिड माने अम्लीय माने गरम अम्लीय जगह ये रही पाए थर्मो एसिडोफाइल मिथानोजेन माने या मिथेन प्रस्तुत या यूज कर माने व्यवहार करा जाए ये कौन जो सन्तसन्तिया जगार मैंने रही था तापर आसतु देखिए यू बैक्टेरिया विषय आउ यू बैक्टेरिया को कह जाए ट्रू बैक्टेरिया मत कह जाए यू बैक्टेरिया को आउ या विषय जोटा माने यू बैक्टेरिया को जे डिस्कवर कले पाखापाखि 1683 टाइम रे डिस्कवर करागला और सेटा भी क्या द्वारा माइक्रोस्कोप ऑलरेडी से इनवेंट हो सारी आउ सी किए कहते लुएन हक द्वारा यहाँ डिस्कवर होता टाक्सोनॉमी तो ऑलरेडी मुझे टाक्सोनॉमी आउ यार फादर क्या कहे टाक्सोनॉमी कार्लोस लिनेस को तापर ये आसी गोटे बैक्टेरिया टर्म जो बैक्टेरिया टर्मटा आसे ये बैक्टेरिया जमी नाम दि जाए आपको गोटे पार्टिकुलर ना अच्छे आपंकर सेमती जो बैक्टेरिया जो ना भी दिगला बैक्टेरिया से बैक्टेरिया टर्मटा आसला अथवा एहरेनबर्ग द्वारा तो या मन रख बैक्टेरिया टर्मटा किए देते आज जन से आर्नेस्ट हैकेल ये तो कही मोनेरा किंगडम को जी एड कले 5 किंगडम प्रथम है 4 किंगडम जो 5 किंगडम जो सिस्टमटा देले से हैकेल तक बायोलॉजिकल ट्रेड्स केमती एक मान कौन कह मॉडर्न बैक्टेरिया बोली कह जाए यू बैक्टेरिया को कारण जो आर्की बैक्टेरिया था से आर्की बैक्टेरिया ही किसी गोटे यार डेभलप फॉर्मटा हूँ यू बैक्टेरिया न्यूट्रिशन केमती एम कहला एक हटोट्रॉपिक भी आउ ऑटोट्रॉपिक भी हेटेरोट्रॉपिक कह तो मैंने अन्य उपर भी डिपेंड कर खाद्य प्रस्तुत करती और निजे मत खाद्य प्रस्तुत करपारती तेनाली दुईटा गुण एम अच्छी तेणु ऑटोट्रॉपिक भी किसी अच्छा किसी ऑटो माने हेटेरोट्रॉपिक भी अच्छा आउ ऑटोट्रॉपिक मैंने बुझीपे ऑटोट्रॉपिक से माने ही कहे जो मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करेंगे और केमती निहाती फोटोसिंथेसिस माने निहाती बॉडी में कौन थी क्लोरोफिल थी तो जानी ऑटोट्रॉपिक कहला मैंने बॉडी में क्लोरोफिल थी ही थी तो जो एग्जाम्पल देखिए गोटे ब्लू ग्रीन आलजी जो नील हरित शैवाल बोली कहुए माइकोप्लाज्मा आ माइक्रोप्लाज्मा देखिए या आउ टे डिटेल पर आसो जो पढ़ा या जोकर प्लांट किंगडम कहुए माइक्रोप्लाज्मा तो ये सब जाऊँगी यू बैक्टेरिया तापर जदि देखा नेक्स्ट आसे प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा को देखिए सेल एक सेल जो आवरण थे से आवरण बाहर को बाहरी सिलिया मैंने एमती छोट छोट हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये गोटे देखिपे डायग्राम रे गोटे जमी बाहरी सिलिया बोली कहे तो से सिलिया थे जहाँद्वारा कि गोटे जगह अन्य जगह को मूवमेंट करपारती सिलिया द्वारा आमती किसी फ्लाजेला थे यहाँ देखो तो गोटे ही लांज भाया तो या द्वारा मैंने अन्य जगह को मूवमेंट करपारती तो फ्लागेजा बोली कहुए फ्लाजेरा जो हेयर लाइक हेल्ले सिलिया ताठू जब टी माने टी मोटा थी जो लांज भाया देखो फ्लाजेरा बोली कहुए आ मैंने यूनिसेलुलर आउ यूकारियोट मुझे मोनेरा आउ प्रोटिस्टा भितर फरक केवल ये से दुईटा जाक यूनिसेलुलर किंतु बास जोटा प्रोटिस्टा से हूँ यूकारियोट जोटा मोनेरा से हूँ प्रोकारियोट तापर आसतु हाँ प्रोटिस्टा को पुणी थे ये 3 भाग कर विषय जानापी मुझे टाक्सोनॉमी ही वर्गीकरण स्टार्ट होती मैंने आपड़ भाग भाग करके पढ़ा पड़े टाक्सोनॉमी तार जो कारण टाक्सोनॉमी बाहर तार जो देखिए तार कैरेक्टरिस्टिक ही यहाँ जो विभाजन करके आप पढ़े तो प्रोटिस्टा को 3 भाग करागला गोटे फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक प्रोटिस्ट आउटे है डिकम्पोजर आउटे है प्रोटोजोआ आ प्रोटोजोआ को ही फास्ट एनिमल बोली कहुए
ହେଲା। ତ ଯେ ବହୁତ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଅଣୁଜୀବରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଦି ହାତୀ ଡାଇନୋସର ଏଇଭଳିଆ, ଡାଇନୋସର ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହାତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ତିମି ହେଇଗଲା, ସବୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କାହାକୁ ପଶୁ କୁହାଯିବ, କାହାକୁ ପକ୍ଷୀ, କାହାକୁ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, ଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ପଶୁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ ଏନିମାଲ୍, ତ ଫାଷ୍ଟ ଏନିମାଲ୍ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆକୁ କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏନିମାଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଡିକମ୍ପୋଜର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ଡିକମ୍ପୋଜ ଯେଉଁମାନେ ଡିକମ୍ପୋଜ କରୁଥିବେ, ଅପଘଟନ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ। ତାପରେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍, ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେବେ, ଏକ ତ ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟ, ଯଦି ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏକ ଏମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଅଟୋଟ୍ରପିକ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ। ଜାଣିଥିବେ ଅଟୋଟ୍ରପିକ୍ କହିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଜି, ତାଙ୍କ ନାଁରୁ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍, ଯେତେ ସବୁ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖିବ, ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଜିର କ'ଣ ଥାଏ, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଅଟୋଟ୍ରପିକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ୟୁଗ୍ଲିନା, ୟାକୁ এই ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ୟାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। ବେଳେବେଳେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାଜେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟେସନରେ କେଉଁ ମାନେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଟୋଟ୍ରପିକ୍, ତ ୟାକୁ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ୟୁଗ୍ଲିନା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ୟୁଗ୍ଲିନା ଇଏ ଉଭୟ ହେଟେରୋଟ୍ରପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଟୋଟ୍ରପିକ୍ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଡିକମ୍ପୋଜର, ଡିକମ୍ପୋଜର କହିବାର ତ ସେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଡିକମ୍ପୋଜ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଥାଏ ସେକୁ ଡିକମ୍ପୋଜ କରିକି ପୋଷଣ ଭଳି ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଇ ଭିତରେ ଆସିବ ସ୍ଲିମାଲଦସ୍ ବା ସ୍ଲିମଲ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ଫାଷ୍ଟ ଏନିମାଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଟା ବେଶୀ ମାଟି ଆଉ ପାଣିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଇଗଲା ଏମୋଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍। ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମକୁ ମନେ ରଖ, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ର ନାଁ ଅଛି ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଭାଇଭ୍ୟାକ୍ସ। ତ ଏହାକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଭାଇଭ୍ୟାକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଥାଏ, ସେ ରୋଗର ନାମ କ'ଣ। ତାପରେ ଯିବା ନା ନେକ୍ସଟକୁ। ତାପରେ ହେଲା ଫାଞ୍ଜାଇ, ଫାଞ୍ଜାଇ ୟାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିକମ୍ପୋଜର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଡିକମ୍ପୋଜର ଭଳିଆ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଞ୍ଜାଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଅଧିକାଂଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିକମ୍ପୋଜର ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଫାଞ୍ଜାଇ ସେମାନେ 50 ଜିନିଷ ଉପରେ ମାନେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ହେଲା ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ୟୁଜ୍ କରୁ, ଛତୁ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କବକ। ଆଉ ସେଇଟା ବି କ'ଣ, ଯେଉଁଠି କୁଟା ଛତୁ, କୁଟାଟା ପଚିଗଲା ପରେ ସେଠି ଛତୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେମିତି ତାକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିକି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଯେ ଡିକମ୍ପୋଜର ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପୋଷଣ ଭଳିଆ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଇଥାଏ ଛତୁ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ପଚା ମାନେ କାଠ ଫାଠ ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିକି ପଚି ଧଡ଼ି ଯାଇଥିବ ମାଟି ତଳେ, ସେଇଥିରେ ଏଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଫାଞ୍ଜାଇର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡିକମ୍ପୋଜର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଯଦି ସେଲ୍ ଦେଖିବେ, ଏମାନଙ୍କ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, ସେଲୁଲୋଜରେ ତିଆରି। ଦେଖିବେ ସେଲୁଲୋଜ, ଆଉ ସେଲୁଲୋଜ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ତିଆରି। ସେଇଟା ସେଲୁଲୋଜଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କହିବେ, ଗ୍ଲୁକୋଜର ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଲୁଲୋଜ କୁହାଯାଏ। ତ ହେଇଗଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍, ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ପୁଣି ବାହାର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଛର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା, ଏଇଟା ଗଛ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଦେଇଛି। ତ ଫାଞ୍ଜାଇ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗଛର କ'ଣ ଥାଏ, ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଞ୍ଜାଇର ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥାଏ। ଉପର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଗଛର ଯେଉଁଟା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେଲୁଲୋଜରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଫାଞ୍ଜାଇ ତାର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ କାଇଟିନ୍। କାଇଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ, ଏଠି ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେଲୁଲୋଜ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜର ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫର୍ମ, କାଇଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ'ଣ, ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ହିଁ ତିଆରି, CH6H12O6। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କହିପାରିବେ ସେଇଥିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଚିନିକୁ ସାକାରାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ସେ ସାକାରାଇଡ୍ରୁ ଯେତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଚିନି ମିଶିଯାଏ ପଲି ୱାର୍ଡ଼ଟା ଲାଗିଯାଏ, ପଲିସାକାରାଇଡ୍। ତ କାଇଟିନ୍ ଗୋଟେ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ବା କହିପାରିବେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ତ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବା କାଇଟିନ୍, କାଇଟିନ୍ ହେଲା ଫାଞ୍ଜାଇର ସେଲ୍ ୱାଲ୍, କାଇଟିନ୍ରେ ତିଆରି। ଗଛର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଲୁଲୋଜରେ ତିଆରି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେଇ ଗୋଟେ ସୁଗାରର ହିଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା ସେଇଟା ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥାଏ, ସେଇଟା କ'ଣ ମୃତ ଥାଏ, ଜୀବନ ସେଠି ନଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଏଠି କ'ଣ ଥାଏ, ଏଠି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥାଏ, କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଥାଏ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ମାନେ ଏଠି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଛରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁଜ କଲର, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟା ଜାଣିଯିବେ। ସେଠି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ର ସେଣ୍ଟର ଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍,
मैग्नेशियम हिसाब से कलर मध्य कौन है ग्रीन होता है। तापर ये आगे देखिए यह हूँ नॉन ग्रीन होता है कौटा जो फंजाई नॉन ग्रीन माने जेहेतु क्लोरोफिल ना नॉन ग्रीन हे ये देखिए नो क्लोरोफिल तो तेणु नॉन ग्रीन हो गला। आउे न्यूट्रिशन केमती जेहेतु क्लोरोफिल ही ना तो ये तो ऑटोट्रॉपी करवा चांस ही नहीं तो ये गला हेटेरोट्रॉपी और हेटेरोट्रॉपी केमती जोटा कि 50 जिनस जो मैंने 50 जिनस को यूज करके पोषण करते कहुए साप्रोफाइटिक बोली भी कहुए। ये अलरेडी लिखा तो फीड्स ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल माने 50 जिनस को खाद्य भाव जो व्यवहार करते साप्रोफाइटिक बोली कहुए। तो ये गला कबक तापर आसतु एनिमल को एनिमल को जो देखिए अधिकांश ये कौन अधिकांश नुह प्राय सबू एम कंज्यूमर ही कहुए मैंने अन्य उपर डिपेंड करती निज खाद्यपाई। ये देखिए एक एम न्यूट्रिशन लेवल केमती एम हेटेरोट्रॉपिक मैंने अन्य उपर डिपेंड करती और सेल स्ट्रक्चर को भाया एम सेल मेम्ब्रेन थाई एम सेल वाल न थाई या मन प्लांटर सेल वाल थाई सेल मेम्ब्रेन थाई किंतु एम सेल वाल न थाई जो मैंने एनिमल केवल थाई सेल मेम्ब्रेन। अब एम हूँ लोकोमोशन माने जेहेतु मैंने अन्य उपर डिपेंड करती खाद्य माने संचय करने खावाई तो निहाती एम तो चलिए गोटे जगह अन्य जगह जावाई पड़ो तेणु एम कौन गोटे जगह अन्य जगह को जो मोबाइल करने मूव करने से हमको गोड़ गोड़ अच्छी गोड़ किए शरीर द्वारा जमी साप गधी किए गोड़ द्वारा किए तार छाती द्वारा भरा देकी गोटे स्थान अन्य को माने मूवमेंट करते ग्रोथ हमको ग्रोथ सेप एंड साइज लिमिटेड सबू प्राणी को देखिए लिमिटेड साइज थाई ताठू अधिक न कम न लिमिटेड साइज थाई सेमती जो देखिए एनिमल सेल जो मेम्ब्रेन कौन हूँ फ्लेक्सिबल थाई सेल वाल आउ सेल मेम्ब्रेन भितर फरक ये सेल मेम्ब्रेन हूँ फ्लेक्सिबल टाइप फ्लेक्सिबल टाइप जोटा सेल वाला रिजिड माने कठिन टाण थाई गचर देखिए जो सेल वाल जो बाहर आवरण जो काठ शुक्ला शुक्ला तार जो से कौन छाली पड़ा जो थाई सेटा कौन से फ्लेक्सिबल नुहे तेणु गच जो थी तार जेहेतु सेल वाल थाई गोटे जो कन्स्टाट हो गोटे जगह ही थाई केवल सहीटा कारण नुह गोटे जगह कन्स्टाट हो जो सेल वाल अच्छी बोली आउ जेहेतु से निजे कौन करे खाद्य निजे माने फोटोसिंथेसिस द्वारा सृष्टि करके निजे ताको यूज करि पारे तेणु सेटा गोटे कारण। तो जानी जोटा सेल मेम्ब्रेन से फ्लेक्सिबल जोटा सेल वाल से रिजिड। तो ये गला एनिमल या विषय आग को पढ़ा बास ये ही आपको जानवा दरकार। तापर आस जातु ये प्लांट और ता पूर्व ये आउ गए जान दिंतु प्लांट को पढ़ा पूर्व जोटा ब्लू ग्रीन आलजी आउ फांजाई फांजाई आ ब्लू ग्रीन आलजी ये दी जन जो सांगरे मिसिकी बास करते सिम्बायोसिस बोली कहुए लिविंग टुगेदर। तो ब्लू ग्रीन आलजी फंजी मिसिक बास कर लाइकेन बोली कहुए आउ लाइकेन को ही इंडिकेटर भाई यूज कर जो परिवेशर दूषित होती कि ठीक अच्छी जानापी ये लाइकेन को माने इंडिकेटर भाया यूज कर जो दूषित अधिक होती से लाइकेन धीरे धीरे कौन जाए नष्ट हो जाए। तो जो अच्छी मैंने जान परिवेश ठीक अच्छी जदि ना जान से परिवेश दूषित बढ़ी चली। आउ ये गोटे अच्छे जो फांजाई जो फंगाई कहली तार जो बाहर आवरण जो सेल वाल थाई से हाइफा गोटे सूता टाइप तार स्ट्रक्चर थाए हाइफा बोली कहुए जो सेल वाल माने से जो माइसेलियम तैयारी जानी छतु जो छतु चाष करागले से जो धीरे धीरे धला लंगर गोटे एमती जाली जाली भाया बाहर सबको माइसेलियम बोली कहुए और से माइसेलियम जो सूता भाया स्ट्रक्चर थाए कौन कहुए हाइफा कहुए। तो फंजाई भितर ये सब आसगला उदाहरण कर ईस्ट ही गला मशरूम जो अगारिकस बोली कहुए छतु जोटा कौच आस्परजिलस पेनिसिलियम को आप कमेंट कर पेनिसिलियम को किए डिस्कवर करते जोटा कि प्रथम विश्वयुद्ध कि द्वितीय विश्वयुद्ध टाइम जो होता। तो आग तो कहूँ पेनिसिलियम को किए डिस्कवर करते नाटा कमेंट करेंगे। तापर आसी जातु आईटी जो ईस्ट देखुं ईस्ट को मन रखा जाए यूनिसेल्युलर यहाँ भी बेले बेले आसे क्वेश्चन ये हूँ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तापर आसतु
आसीगला तापर प्लांट प्लांट जानते से गोटे स्थान थी तो मुवेबल संभव नहीं मुवमेंट करें आने ऑटोट्रॉप एम क्लोरोफिल थाई जानते ऑटोट्रॉप माने एम क्लोरोफिल थाई क्लोरोफिल द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा खाद्य तैयारी करते क्लोरोफिल जेहेतु अच्छी क्लोरोफिल सूर्यकिरण को से ग्रहण करी कार्बन डाइऑक्साइड जल को कंबाइन करी ग्लूकोज तैयारी करते आम को साइज अनलिमिटेड है लिमिटेड नुह गच देखे बहुत छोट भी अच्छी बहुत बड़ अच्छी तो ये गला प्लांट या विषय में आगे डिटेल पढ़ा तो आज ये जानी था तापर ये आसगला आउ कि इंटरेस्टिंग फैक्ट जदि गछ गोटे अच्छी रेड वुड बोली कह जाए गछ जोटे कैलिफोर्निया देखा जाए ये देखिए रेड वुड आटा बेसी देखा जाए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका रेड को आप देखा मिल रेड वुड तार हाइट पाखापाखि 120 मीटर जो एवरेज हाइट होता है 120 मीटर मैंने बहुत लंबा आमती आउ गए गछ पिछले जाने गोटे बेनियन जो बर गछ तो बर गछ को जानते यहाँ आम जो कोलकाता जो बोटानिकल गार्डन से देखा मिले एम पाखापाखि 200 वर्ष भी अधिक बची पारते माने एम एवरेज एज जदि कह 200 वर्ष पर्यंत मैंने बची पारती तो ये आउ थे ये रिवाइज करदे ये रिवाइज करें कौन से प्रत्येक कोष जो माने कोष हो जो किंगडम कहगला से किंगडम को रिवाइज करने ये टेबुलटा तैयारी कराई तो मोनेरा किंगडम से गले प्रोकार्योट आउ से कौन यूनिसेल्युलर आउ से ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप दुईटा जाक हो पारते कि क्लोरोफिल थाई आउ कि हेटेरोट्रॉपिक अन्य डिपेंड करती आम कौन सेल वॉल थाए जमी आसतु प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा हूँ यूकारियोट मोनेरा प्रोटिस्टा फरक होची प्रोकारियोट एम यूकारियोट प्रोटिस्टा एमने भी यूनिसेल्युलर बुझ दी जन जाक यूनिसेल्युलर फरक होती मोनेरा हूँ प्रोकारियोट प्रोटिस्टा हूँ यूकारियोट आउ एम हूँ मिक्सड एमने से कौन होती गुण ऑटोट्रॉपिक भी होता है हेटेरोट्रॉपिक भी होता है माने क्लोरोफिल भी थाए आउ मैंने अन्य डिपेंड कर भी माने खाद्य प्रस्तुत करपारती आम सेल मेम्ब्रेन थाई कहार कहार सेल वाल थाई तार फंजाई फंजाई तो कहले यूकारियोटिक एम मल्टी सेल्युलर माने एक रु अधिक कोष थाए एम मल्टी सेल्युलर आउ से भर फंजाई भितर गोटे अच्छी ईस्ट जोटा को कहुए से किंतु यूनिसेल्युलर तो फंजाई आम कौन हेटेरोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक केमती से साप्रोफाइट मैंने 50 जिनस को पोषण वाले यूज करते तेणु साप्रोफाइटिक कहुए आम सेल वाल तैयारी कैटिन जोड़ा जोड़ा ये देसी से निहाती आप माने मन रखिए कैटिन हो गला तापर प्लांट प्लांट ये भी गला यूकारियोटिक एमाने भी मल्टी सेल्युलर माने हमको एक रु अधिक कोष थाई आ माने ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक माने क्लोरोफिल थाई तेणु मैंने खाद्य प्रस्तुत करते ऑटोट्रॉपिक कहुए आम जो सेल वॉल से सेलुलोजर तैयारी तापर से एनिमल तो एनिमल एमाने हो गले यूकारियोटिक आम बॉडी मल्टी सेल्युलर बहुत गुड़ा कोष पुणी टिश्यू टिश्यू पर अंग प्रत्यंग तापर गोटे बॉडी तैयारी हुए तापर एमाने गले ऑटोट्रॉपिक अन्य डिपेंड करते खाद्य आम केवल सेल मेम्ब्रेन थाई जो कोष थाई केवल सेल मेम्ब्रेन ये सेल वॉल एम न थाई तो नेक्स्ट आसीगला नेक्स्ट ये मुझे रिवाइज करने गोटे इमेज जो गत जो क्लास रे आम जो पढ़ीलु ता विषय टे रिविजन करने तो या अलरेडी यहाँ मुझे सर्ट्स देदेवी यहाँ जूम करी मैं सर्ट्स बनई देदेवी रिविजन करने साहय कमी 5 किंगडम कौ भाया गोटे पर गोटे आसला 2 किंगडम 3 किंगडम 4 5 ये आसला जो साइंटिस्ट मैंने आसिले बायोलॉजी टर्म मान केमती आसला किए देते से विषय लिखाई आउ यहाँ सीरियल लिखाई जो टाक्सोनॉमी करा टाक्सोनॉमी सीरियल वाइज किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस स्पीशीज तो या मुझे गोटे सर्ट्स बनईदेवी रिवाइज करने तो आज आम क्लास को ये शेष करूँ तो नेक्स्ट क्लास को पुणी देखा।